Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 9. In the previous video, we discussed about the social life of the people of South India. Now, page number 73. Social life of people of East India. East India यानी West Bengal. Most of the people of eastern India live in rural areas. Since the region comprises of mountains, plantation, agriculture is practiced widely. Example tea. The staple food of the people is rice and fish. But besides that, people also consume pulses and vegetables. Rasagulla, the famous cheese based syrup dessert of West Bengal, is popular all over the world. तो वहाँ ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाका है। ज़्यादातर वहाँ पे माउंटेन्स है, खूब बारिश होती है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है। चाय के बगीचे होते हैं। लोग यहाँ पर ज़्यादातर फ़िश और राइस ही खाते हैं और उसके साथ दाल और सब्ज़ी भी खा लेते हैं। रसगुल्ला है जो एक मिठाई है, ये वेस्ट बंगाल की पूरी दुनिया में फेमस है। पीपल प्रिफर टू वेयर कॉटन ankle length clothes as the region faces a tropical monsoon climate. People are usually short in height. Men wear the dhoti kurta while women drape their saris in a traditional pattern. लोग पूरे कपड़े पहनते हैं कॉटन के और गर्मी भी बहुत पड़ती है और बारिश भी पड़ती है। लोगों की हाइट है वो छोटी होती है और वहाँ पे जो लेडीज़ लोग होते हैं वो बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनते हैं और मेन जो होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 74. Most of the houses of eastern India are made up of bamboo and wood, but some are also made up of brick and cement. Tribal in forest area live in huts spread over the forest area. The houses have sloping roof due to the excessive rain. The backyard of most houses have small ponds known as pukur in which fish breeding or culture is practiced. तो ज़्यादातर जो हाउसेस होते हैं, घर होते हैं, वो बैम्बू और लकड़ी से बने हैं और सम जो है वो ब्रिक और सीमेंट से बने हैं। ट्राइबल इन फॉरेस्ट एरिया यानी जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोग हट स्प्रेड ओवर द फॉरेस्ट एरिया, जंगलों में जो झोपड़े होते हैं उसमें रहते हैं। द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स, उनकी जो छत है वो स्लोप है ड्यू टू एक्सेसिव रेन, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। और घर के पिछवाड़े बैकयार्ड में छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फिश को अपने घर में ही वो पालते हैं और इसी तरह का अरेंजमेंट किया गया है। Assamese, Bengali and Oriya are commonly spoken by the people of eastern India. Hindi and English are also spoken marginally. यानी कौन सी लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं, तो आसामीज, बंगाली एंड ओरिया एंड हिंदी एंड इंग्लिश वो भी लोग वहाँ पे बोलते हैं। Many festivals brighten the life of the people of this region. Bihu and Ojapali, the folk dances of Assam, are very famous. कई सारे त्योहार वहाँ के लोग की ज़िंदगी में खुशहाली लाते हैं। ब्राइटन द लाइफ ऑफ द पीपल, उन लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाते हैं। और जो फेमस डांसेस कौन से हैं उनमें से बिहू एंड ओजा पाली। Below the picture is given of the folk dances of East India. India believes in secularism and Indians have the liberty of following the religion of their choice.
India offers a stunning variety in virtually every aspect of social life. Diversities of authentic, linguistic, regional, economic, religious, class, and caste groups cross-cut Indian society, which is also permitted with immense urban rural differences and gender distinctions. A variety of languages and dialects are spoken here. सो इंडिया में सारे धर्म में बिलीव करता है, किसी एक धर्म में ही नहीं। हमारे देश में हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हमारे देश में अलग अलग भाषा है, धर्म है, लोगों के पास कम या ज़्यादा पैसे हैं, कास्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के लोग बहुत मॉडर्न हैं, गांव के लोग बहुत ही पीछे हैं, ऑर्थोडॉक्स है, और जो जेंडर यानी मेल और फीमेल में भी भेदभाव है, अलग तरह की भाषा है और अलग तरह की बोली है यानी डायलेक्ट है। नाउ पेज नंबर 75। India, being a multicultural and multi-religious society, celebrates holidays and festivals of various religions. The three national holidays in India, the Independence Day, the Republic Day, and the Gandhi Jayanti, are celebrated with zeal and enthusiasm अक्रॉस इंडिया। सो भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस। फिर भी हम सारे त्यौहार मनाते हैं, सेलिब्रेट हॉलीडेज। ईद हो, गणेश चतुर्थी हो, जन्माष्टमी हो, पतेती हो, क्रिसमस हो, सब हम सेलिब्रेट करते हैं। और उनमें से 3 जो है वो नेशनल हॉलीडेज़ है। एक है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। तो एक साथ सब मनाते हैं और मज़ा करते हैं। हावेवर विद द पैसेज ऑफ टाइम many transformation can be seen in the Indian way of life. Example, changes are visible in diet, apparel, lifestyle, etc. due to increase in communication technology and faster means of transportation. Globalization has brought about many changes in the social life of the people. तो धीरे धीरे समय के साथ हमारे खाने पीने में अंतर आ रहा है, हमारे कपड़े पहनावे में भी चेंज आ गया है। ये सब कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के कारण ये हुआ है। और फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हम कहीं पे भी कहीं भी घूमने जा सकते हैं। कारण ये है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ये पूरी दुनिया छोटी हो गई है, एक साथ हो गई है, और उसके हिसाब से सोशल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। चेंज इज़ इनएविटेबल, natural and necessary, but our culture and heritage must be conserved. Man and environment are interdependent, and thus, along with culture and heritage, its prestige and honor must be preserved under all circumstances. चेंज को कोई रोक नहीं सकता, ये ज़रूरी है और नेचुरल है, लेकिन हमें अपना कल्चर, संस्कृति को संभाल कर प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंसान और नेचर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। उसी तरह हमारी संस्कृति जो है वही हमारी धरोहर है, हेरिटेज है, वह हमारी इज्जत है, ऑनर है संस्कृति। तो हमें हमारे देश के गौरव को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियंस। द कल्चर ऑफ इंडिया refers to the way of life of the people of India. India's languages, religions, dance, music, architecture, food and customs differ from place to place within the country. तो अगर हम हमारे देश की कल्चर की बात करें तो हर जगह अलग अलग डांस, भाषा,
धर्म, खाना पीना, रीति रिवाज सब अलग अलग है। The Indian culture, often labeled as an amalgamation of several cultures, span across the Indian subcontinent and has been influenced by a history that is several millennia old. भारत में सभी रीति रिवाज का, धर्म का, भाषा का, खाना, कपड़ा, त्योहारों सब चीज़ों का मिक्सचर है। एमलगमेशन यानी मिक्सचर है जो बहुत पुराना है और ये सब हमने हिस्ट्री से सीखा है। द पीपल ऑफ द रूरल एरियाज टू एन्जॉय दिस डाइवर्सिटी इज सीन in caste,